اقتصادی اعداد و شمار شرح نمو میں بہتری کی عکاس، کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری، جولائی سے اکتوبر کے دوران سرپلس رہا، مہنگائی میں توقع سے زیادہ کمی، نومبر میں مہنگائی کی شرح 4.9% رہی، زر مبادلہ کے ذخائر $12 ارب سے تجاوز کر گئے، برآمدات میں 8.7% اضافہ، پالیسی ریٹ میں مسلسل کمی سے مہنگائی اور بیرونی کھاتے پر دباؤ میں کمی۔ سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد، سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ ساز دن، انڈیکس میں 1867 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,16,169 کی بلند ترین سطح پر بند، 66 ارب روپے کے سے زائد شیئرز کا کاروبار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بدھ سے مصر کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم 18 سے 20 دسمبر کے دوران ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم D8 کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور مستقبل کی معیشت سے متعلق امور پر غور ہوگا۔ محمد شہباز شریف جامع معیشت، چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی اور نوجوانوں کے لیے مواقع کی اہمیت سے متعلق کلیدی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم فلسطین کی صورتحال پر پاکستان کے دو ٹوک حمایت کا اعادہ کریں گے۔ محمد شہباز شریف کی کانفرنس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، سانحہ APS پشاور کے 10 سال مکمل، تلخ یادیں آج بھی تازہ۔ 2014 میں 132 بچوں سمیت 149 افراد کو شہید کیا گیا۔ قومی سانحے پر آج بھی ہر آنکھ پرنم۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیہ تقاریب۔ اس دلخراش واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی عزم مزید مضبوط ہوا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے کلا کما کے لیے نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا تجدید عہد۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاک دشمن نے معصوم بچوں سے ان کے خواب، امیدیں اور مستقبل چھینا۔ فتنہ الخارج کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی معاشرتی اقدار سے۔ بزدل دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہے گی۔ ان عناصر کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ قومی اسمبلی اجلاس، شہداء APS کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ متفقہ قرارداد کے ذریعے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ۔ شہداء وطن کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی چین کی بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ IT، مصنوعی ذہانت اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ خوشحالی کا عمل تیز کرنے کے لیے ہمارے دروازے سرمایہ کاروں کے لیے کھلے ہیں۔ سہولتوں کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چین کی کاروباری برادری خصوصی مراحت سے فائدہ اٹھائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ ربیع سیزن میں کسانوں کو کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ کھاد کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانا ہے۔ فرٹیلائزر انڈسٹری کو گیس کی بلا تعطل فراہمی برقرار رکھی جائے، نائب وزیر اعظم۔ یورپ کے لیے PIA پروازوں کی بحالی اہم سنگ میل۔ PTI دور میں قومی ادارے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ایک وزیر کے بیان سے ملک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جب کرم میں لاشیں پڑی تھیں اس وقت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وفاق پر لشکر کشی میں مصروف تھے۔ ناکام احتجاج کے بعد PTI والوں نے من گھڑت پروپیگنڈے کا سہارا لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
पी टी आई ट्रोल्स की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने का मामला, हुकूमत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वजीर कानून आजम रजी तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खुद को सियासी जमात कहलाने के दावेदार अल जिहाद के नारे लगाते हैं, दूसरों की पगड़ियां उछालना और मुल्क को बदनाम करना इनका वतीरा है। GHQ हमला केस, मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गन्नापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। इंसदार दहशत गर्दी अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात 19 दिसंबर को होगी। वतन अजीज को पोलियो से पाक करने का मिशन। 7 रोजा कौमी मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए वालिदैन, उलमा इकराम और तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन की अपील। तंग नज़र और इंतहा पसंद अनासिर की बुज़दिलाना चाल। करक और बन्नू में इंसदाद पोलियो टीमों पर हमले, एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, एक जख्मी। सेहतमंद और खुशहाल पाकिस्तान के मुखालिफ अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की पोलियो वर्कर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। गजा पर इसराइल की जारियत जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 45,000 से तजावुज कर गई। 1,07,000 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 52 फलस्तीनी शहीद, 203 जख्मी। बैत हनून के स्कूल पर हमले में शोहदा की तादाद 43 हो गई। हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने की पादाश में इसराइली फौज ने एक और सहाफ़ी को गोली मार दी। सेहूनी दहशत गर्दी में अब तक 196 मीडिया वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे हैं। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर भी सेहूनी तैयारों की बमबारी। शाम की अस्करी तनसीबात पर इसराइल के हमले, 18 मुकामात पर मिसाइल मारे गए। सेहूनी हुकूमत का गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की तहरीर शाम के रहनुमा अहमद शरा से मुलाकात। पाबंदियों के खात्मे, अमन की बहाली और मुहाजिरीन की वापसी के मामलात पर गुफ्तगू। शामी ग्रुप का नए हालात और तनाजुर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर नजरसानी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जालिमाना हथकंडे, मुख्तलिफ इलाकों में मुहासिरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मसाइल हल करने की बजाय तलबा को बेदखल कर दिया। मगरबी मुल्कों ने अपने मुफादात के लिए यूक्रेन को जंग में झोंक दिया। अमरीका हथियारों की फराहमी से कशीदगी बढ़ाना चाहता है। रूस जौहरी हथियारों की ब्रांडिंग नहीं कर रहा। एटमी हथियार हमारी डेटरेंस पॉलिसी है, सदर व्लादिमीर पुतिन। ईरान में रेत और मिट्टी का तूफान, निजाम जिंदगी मफलूज। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई। जाबल, हामून, हरमन, नमरोज और दीगर मगरबी इलाकों में स्कूल बंद, परवाजें मुअत्तल। कायदे आजम बैन सूबाई गेम्स, पंजाब 35 सोने, 29 चांदी और 13 कांसी के तमगों के साथ सरे फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा का 5 सोने, 9 चांदी और 9 कांसी के तमगों के साथ दूसरा नंबर। इस्लामाबाद की 5 तिलाई, 5 चांदी और 21 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। झल मगसी डेजर्ट चैलेंज रैली जाफर मगसी के नाम। प्रीपेड कैटेगरी में 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 54 मिनट और 20 सेकंड्स में तय किया। मीर अनीस मगसी दूसरे और नादर मगसी तीसरे नंबर पर रहे। वुमेन कैटेगरी में सैयदा रिदा जैनब कामयाब। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज, पहला मैच कल पर्ल में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 5 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई। 3 वनडे के बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचेस भी खेलेंगी।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन, स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट में मजीद 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15 से कम होकर 13% हो गया। तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुशाहिदा किया गया कि महंगाई की सतह 4.9% तक पहुंची है, जो कि तवक्कुआत से बढ़कर कम हुई, जबकि शरह नमू के इम्कानात बेहतर हुए और माशी सरगर्मियों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक पॉलिसी रेट में मुहतात कटौती का तरीक़ाकार महंगाई और बैरूनी खातों के दबाव को काबू में रखे हुए है और इसके साथ साथ पायदार बुनियादों पर माशी नमू को तक़वियत दे रहा है। कमेटी के मुताबिक जारी खाता मुसलसल तीसरे महीने फाजिल रहा, जिससे कमजोर आमद रुकूम और सरकारी कर्जों की भारी वापसी के बावजूद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर को 12 अरब डॉलर तक लाने में मदद मिली है, जबकि अजनास की आलमी कीमतें बिलउमूम साजगार रहीं, जबकि सनती सरगर्मी की रफ्तार तसलसल से जारी है। इन तमाम अवामिल को देखते हुए माली साल 2025 के दौरान हकीकी GDP की नमू 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। ताजिर बरादरी शरह सूद में 5वीं मरतबा मुसलसल कमी को खुशाइन करार देती है। मईशत की जो दीगर इशारिये हैं वो भी यकीनन बेहतर होंगे होपफुली, और इससे जो हुकूमत की अपनी जो फिस्कल स्पेस है जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई कंसेशन देना चाहती है तो वो भी दे सकेगी। एक पॉजिटिव साइन है कि हुकूमत कम की तरफ जा रही है। देखें, जब खुशहाली आती है तो चीज़ें बेहतर होती है। पॉलिसी रेट का कम होना खुशहाली की तरफ एक नया इशारा है। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक बरामदात में 8.7% इजाफे के साथ साथ दरामदी बिल का महदूद रहना मईशत के लिए हुकूमती पॉलिसियों का साजगार तसलसल तरसीलात को इस्तेहकाम देने का बाइस बना और मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा और मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया संग मील उबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट ने 1,16,000 की नफसियाती हद उबूर करके इसे बरकरार भी रखा। 100 इंडेक्स 1,867 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,169 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। आज 100 इंडेक्स 1,16,681 की सतह तक भी बुलंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि शरह सूद में कमी, सियासी इस्तेहकाम, SIFC के इक़दामात और हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के नतीजे में मार्केट नए रिकॉर्ड्स कायम करेगी। मार्केट इस बात शो करती है कि हमारी इकोनॉमी हालत बहुत अच्छी है और आगे अच्छी नजर आ रही है। सबसे बड़ा मेजर डॉलर है। जब डॉलर रुक जाता है तो आपकी हर चीज़ कंट्रोल में आ जाती है। आपका आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आया मार्केट में और मार्केट बुलिश नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो पूरे किए और उसके बाद जो है जो बजट सरप्लस होना शुरू हुआ, उसके बाद जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव होना शुरू हो गए, आपकी करेंसी स्टेबल होना शुरू हो गई। आज मार्केट में 1 अरब 47 करोड़ 6 लाख से जायद शेयर्स के कारोबार की मालियत 66 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद थी। मार्केट में 477 कंपनियों के कारोबार में 246 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 194 में कमी, जबकि 37 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। आज सोने की कीमतों में भी 800 रुपए फी तोला की कमी हुई। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म काहिरा में मुनक्किद होने वाले तरक्की पजीर 8 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान काहिरा में मुनक्किद होने वाली तरक्की पजीर मुल्कों की तंजीम D8 के 11वीं सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास नौजवानों के लिए सरमायाकारी और मुस्तकबिल में मईशत की तश्कील के हवाले से मुनक्किद हो रहा है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म एक मजबूत और जामे मईशत की तामीर के लिए नौजवानों समेत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान के मंसूबों पर भी रोशनी डालेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत, गजा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 के खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। इस
इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को भी उजागर करेंगे और मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इजलास से कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार 18 दिसंबर को D8 वज़रा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सानेह APS पेशावर के 10 साल बाद भी उसके जख्म ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 को 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला करके 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया था। कलअदम TTP ने APS हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के इंतकामी रद्द-ए-अमल करार दिया। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और वो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। इस सानहे ने पूरी कौम को बिला किसी मजहबी और सियासी तफरीक के यकजा कर दिया। ये वाक़या दहशत गर्दी से निमटने के मुतफ़क्का लाहे अमल नेशनल एक्शन प्लान का बायस भी बना। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 बरस मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा कि बुज़दिल दहशत गर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अहाते में घुसकर 144 मासूम जानों को हमसे हमेशा के लिए जुदा किया। शहीद होने वालों में से अक्सरियत कम सिन बच्चों की थी। इनके वालिदैन से ख्वाब, उम्मीदें और उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। गुजरता वक्त भी इस सानहे के गम और उन मासूम और कमसिन बच्चों की जुदाई के सदमे को मिटा नहीं सकता, जिन्होंने अपने प्यारों को इस भयानक सानहे में खो दिया, जिनके लख्ते जिगर उनसे छीन लिए गए। उनकी गम और तकलीफ को किसी तौर भी कम नहीं किया जा सकता। पूरी कौम उन बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम हमारे बच्चों और असातिज़ा की बहादुरी को सलाम, उन्हें खराज अकीदत, उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करती है, जो आज भी तमाम मुल्क दुश्मन अनासिर से पूरी हिम्मत और जवां मर्दी से नबर्द आजमा हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले की 10वीं बरसी पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज के दिन दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकियत से कत्ल का घिनौना और इंसानियत सोज जुर्म किया। सानह APS से वाज़े है कि दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज हम अपने बहादुर सिपाहियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। 16 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि किस तरह मासूम बच्चों को इल्म की नूर से रोशनास होने की सज़ा दी गई। पेशावर की फ़िज़ा धमाकों और गोलियों की गूंज से लरज़ उठी, लेकिन इसके बाद कौम ने जिस जुर्रत और हौसले का मुजाहिरा किया वो दुनिया के सामने मिसाल बन गया। सानहा APS की याद में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में दुआइया तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शुरका ने शोहदा की मिशन को आगे बढ़ाने और मुल्क को अमन व तरक्की का गहवारा बनाने के अज़्म का इजहार किया। ज़िले इंतज़ामिया पेशावर की जानिब से शोहदा APS की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़ानी का एहतमाम किया गया। तकरीब के शुरका का कहना था कि कौम कभी इस दुख को फरामोश नहीं कर सकती। इस वाक़े ने कौम को दहशतगर्दी जैसे नासूर के खात्मे के लिए मुतहद कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सानहा APS की 10वीं बरसी पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि यह सानहा इल्म इंसानियत दुश्मनी का अलमनाक वाक़या है, जिसके ज़ख्म आज भी ताज़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये मुल्क की तारीख़ का नाकाबिल फरामोश वाक़या है, जिसने कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने सानहा APS पेशावर को तारीख का बड़ा जुल्म करार दिया। इजलास में शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज ने कहा है कि 16 दिसंबर एक स्याह दिन था जब मैंने अपना भाई और बहुत से प्यारे दोस्त खो दिए। बरतानिया में मुकीम अहमद नवाज ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हमें ऐसे सानहात से सीख कर आगे बढ़ना है।
16 दिसंबर का ये जो दिन है तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कौम के लिए एक दर्दनाक दिन है। उस हादसे में मैंने अपना भाई हारिस नवाज शहीद खोया। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे दोस्त उस हादसे में खोए। मेरे साथीज़ा कराम उसमें शहीद हुए। मैंने ख़ुद उस हादसे में ज़ख्मी हुआ। हमारी तरह लोगों के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपने प्यारे खोए, जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके भाई बहन शहीद हुए, जो ख़ुद ज़ख्मी होकर सर्वाइव कर गए, तो उनके लिए ये एक ऐसा दिन है कि ये दिन अपने साथ दर्द भी लाता है, ये दिन अपने साथ गम भी लाता है उस दिन के, और उस हादसात के मनाजिर जो है तो अपनी आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मैंने एक जंग शुरू करनी थी, और ये दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं जिनको तालीम से डिप्राइव किया गया है, तो उनके लिए मैं एक जदोजहद लड़ूँ, उनको तालीमी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको फ़राहम करूँ। इस 16 दिसंबर के मौके पे ये ज़रूरी है कि हम सही सोचें पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। कौमी असम्बली ने सानहा APS पेशावर के हवाले से करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली शाज़िया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि APS का सानहा सिर्फ स्कूल पर हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला था। ये ऐवान APS शुहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करता है और पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। This House, on the 10th anniversary of APS tragedy, recalls the brutal attack on the Army Public School APS Peshawar on 16th December 2014, where 149 innocent lives, including 132 children, were mercilessly taken by terrorists, acknowledges the unparalleled sacrifice made by these young martyrs, their teachers and staff, who displayed extraordinary courage in the face of unimaginable brutality. कौमी असम्बली में सानहा APS के शुहदा के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर ने पूरी पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया और हमने मनहसल कौम ये तहैया कर लिया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और जुनूनियत की कोई जगह नहीं। इस स्याह तरीन दिन के बाद इंसदाद दहशत गर्दी के लिए किए जाने वाले इकदामात की तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। 16 दिसंबर 2014 का दिन हमारे अजहान से कभी न महव होने वाला एक स्याह तरीन दिन है। दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क में दहशत गर्दों ने भी शायद ही स्कूल में मासूमों को निशाना नहीं बनाया। यूं ये वाक़या दहशत गर्दी की तारीख में भी बदतरीन मिसाल बन गया। इस साने के बाद पूरी कौम ने सिक्योरिटी अदारों के साथ मिलकर एक ऐसे ऑपरेशन का आगाज़ किया कि जिसका हदफ एक ऐसा पाकिस्तान था जहां रियासत ही को ताकत के इस्तेमाल का हक हासिल हो। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कबायली इलाकों में दहशत गर्दों की कमी गाहों को मुकम्मल ख़त्म किया गया। कबायली इलाकों के बेशतर हिस्सों पर हुकूमती अमलदारी कायम हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 46,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया क्लियर कराया गया। 18,000 से जायद दहशत गर्द मारे गए। 250 टन से जायद बारूद कब्जे में लिया गया। 75,000 से जायद गैर कानूनी असला भी कब्जे में ले लिया गया। 50 बड़े, 2.5 लाख से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड और 1200 से जायद छोटे बड़े ऑपरेशंस दहशत गर्दों के खिलाफ किए गए। पाकिस्तान ने जहां 2611 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का बीड़ा उठाया, वहीं बॉर्डर फोर्ट्स और टर्मिनल भी कायम किए। पाकिस्तान के बरवक्त इकदामात के बायस अफगानिस्तान के अंदर के हालात व वाक़यात के असरात से पाकिस्तान महफूज रहा। बलूचिस्तान में भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया और कराची को पुरअमन बनाया गया। पंजाब से छोटू गैंग समेत दीगर दहशत गर्दों का खात्मा और नेशनल एक्शन प्लान के तहत 60 से ज़ायद तंजीमों को कलअदम करार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान को एक पुरअमन पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। हमें उनके हाथ मजबूत करना होंगे और हर उस कोशिश को नाकाम बनाना होगा जिससे माशरे में इंतशार और बद अमनी फैलने का अंदेशा हो। आइए अपने हिस्से की शमा जलाएं। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बहर हिंद के इलाके में समुद्री ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की दी जा रही है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
صدر مملکت نے بلو اکانومی تعاون پر تیسرے چین بحر ہند علاقائی فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان بحری شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں ہے۔ We hold immense potentials through the blue economy in areas such as sustainable fisheries, marine tourism, renewable energy, maritime technology. Yet this potential comes with great responsibility. صدر مملکت نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت گوادر پورٹ کو ترقی دی جا رہی ہے۔ گوادر پورٹ کو علاقائی روابط کے مرکز میں بدلا جا رہا ہے، جس سے تجارت اور اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ Gwadar port is being developed into a regional connectivity hub to enhance trade and maritime economy growth. Our partnership with China under the Belt and Road Initiative has fostered the knowledge exchange, technology advancement. صدر مملکت نے فورم کے اہداف میں پائیدار ترقی پر توجہ دینے پر چین کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فورم کے ایجنڈے میں استطاعت کار میں اضافہ اور جزائر کی شمولیت خوشائند ہے۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کو دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے۔ چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب بزنس کونسل دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ چین میں ہونے والی پنجاب بزنس کانفرنس میں چین کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، مصنوعی ذہانت سمیت مختلف سیکٹر سے وابستہ کمپنیوں نے شرکت کی اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چین کی ترقی کرتی ہوئی معیشت ہمارے لیے قابل تقلید ہے، سیاسی بصیرت اور ترقی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ مختلف شعبوں میں چین کے تجربات سے استفادہ کرنے کے خواہاں ہیں۔ پنجاب کو چین سمیت دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے۔ Government of Punjab is committed to fostering partnerships with China in environmental policy formulation, adoption of clean technologies, and the execution of green initiatives. We have met with companies that are looking to invest in the modernization of our agriculture sector. This is a great example of how technology and investment can improve traditional industry and boost economic growth. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب بزنس کونسل دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت، سماجی اور اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ صحت کے شعبے میں چینی ہسپتالوں اور نظام صحت سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جبکہ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے چین کے ماڈل کو اپنایا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے چینی حکومت کی جانب سے شاندار مہمان نوازی کی بے حد تعریف کی۔ پنجاب بزنس کانفرنس میں IT، زراعت، مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پنجاب حکومت مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے مقامی سطح پر کوششوں کے ساتھ ساتھ چین کے تجربات سے استفادے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر۔ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے۔ نوجوانوں اور مقامی انڈسٹری کو اس جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پنجاب حکومت بھی ترجیحی اقدامات کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورہ چین کے دوران بیجنگ اور شنگھائی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین سے خصوصی ملاقاتیں کر کے اس ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی کی راہ ہموار کی۔ جو ان کا انیشیٹو ہے، جو ان کا اقدام ہے لاہور کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک سمارٹ سٹی بنانے کا، مجھے لگتا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے اور اس سے ملک اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی شہرت یافتہ چینی کمپنی ہواوے کے ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بات چیت کے بعد اب پنجاب کے IT سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے ہیں اور لاہور کو مصنوعی ذہانت کی مدد سے جدید ترین سمارٹ سٹی بنانے کی راہ بھی ہموار ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ چین سے جہاں دوسرے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا، وہیں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کھاد کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کو حکومت، گیس سپلائرز اور فرٹیلائزر انڈسٹری کے درمیان ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں کھاد کی صنعت کے لیے گیس کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا گیا اور اسے تسلی بخش قرار دیا گیا۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पैदावार को मुस्तहकम बनाने के लिए फसल रबी में खाद की सनत को बिला तात्तुल गैस की फराहमी बरकरार रखने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शमसी तवानाई का ये मंसूबा सूबे के बड़े तरक्याती मंसूबों में से एक है। कमेटी ने मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तीसरे फरीक की तस्दीक के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी और आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान सकाफती तनव्वुर रखने वाला मुल्क है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के तारीखी मकामात और यहाँ पर मौजूद कदीम तहजीबों के आसार से मुतारिफ करवाने के लिए सयाहत का फ़रोग़ ज़रूरी है। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बदकिस्मती से बैन अल-अक़वामी मीडिया ने दुनिया को पाकिस्तान के मस्क शुदा तशख़्ख़ुस से मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान सकाफ़ती और जोग्राफियाई तनव्वुर से मालामाल मुल्क है और यहाँ के लोग अमन पसंद और मेहमान नवाज हैं। Our country is nothing like what the Western media portrays, especially. We're a peaceful people, we're a peace-loving people, we are friendly people, and our hospitality is known the world over. As far as peaceful coexistence is concerned, even in our international relations, we've been very consistent. We've been good allies. And we've not left anyone until and unless we have been left by them. So, as a people, I think we need to put across the message of tolerance, of peace, of harmony, through our culture. वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल पोर्टल के ज़रिए इन तारीखी मकामात से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की जा सकती है। We are living in a very polarized environment. There are regional conflicts, there are global conflicts, and polarization is the order of the day. But when it comes to national interest, when it comes to the culture of the country, when it comes to portraying a soft image of the country, I think this is something that we can come to common grounds on. There's a lot that has been done. There's a lot that can be done. पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन मिशाल मलिक ने कहा कि बैनुल मजहबी हम आहंगी हमें दुनिया के साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पे पहुंच चुकी है। मकबूजा कश्मीर में कई कदीमी मसाजिद को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया है। Freedom is one of the most fundamental rights in the world. It is on the highest pedestal. Hundreds and hundreds of mosques in Indian occupied Kashmir are being destroyed or being dismantled or being they're reconstructing mandars over there for the RSS. So this ideology of hatred in a world where we need to mingle on the basis of faith and diversity and interfaith and tolerance. डायलॉग से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रिरीन ने भी माशी और माशरती तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सकाफत, अदब और फन दुनिया में अमन के फरोग का अहम जरिया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो चुकी हैं। PTI दौर में PIA के साथ खिलवाड़ किया गया। जब कुरम में लाशें पड़ी थीं उस वक्त अली अमीन गंडापुर विफाक पर लश्कर कशी में मसरूफ थे। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ को PIA पर बात करने से पहले सोचना चाहिए कि उनके दौर में क्या मामलात हुए थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद PTI वालों ने सबूत पेश किए बगैर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को ड्रेस किया होता तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता
तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि PIA के गैर मुनाफा बख्श रूट्स को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। PTI के दौर में PIA को एक बयान से नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हम PIA को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहते हैं। जब 800 अरब रुपए के करीब हमारी लायबिलिटी पहुंच गई PIA की, और PIA के जो स्टेटस था, वो PTI की हुकूमत में जो उस वक़्त के वज़ीर थे हवाबाजी के, उन्होंने जो उसकी एक स्टेटमेंट ने हशर किया, वो अल्लाह का फजल है, अब 10-15 रोज़ पहले जो है हमें यूरोपियन यूनियन ने हमें इजाज़त दी है। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी ने ऐवान को बताया कि 5G और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। इंटरनेट को तेज और मजीद बेहतर बनाने के लिए फाइबर केबल का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। वक्फे सवालात में पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मोहम्मद उस्मान अवैसी ने बताया कि इदारे पर पेंशन और तनख्वाहों का भारी बोझ है। पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सहाफ़ियों को हिरासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेट इजलास में उन्होंने बताया कि एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से मारूफ सहाफ़ी तलत हुसैन समेत बाज़ सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को हिरासत करने के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह धरीजो ने एक सियासी जमात की जानिब से मारूफ सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन समेत बाज़ सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, उनके अहले खाना को हरासा करने का मामला ऐवान में उठाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रियासत अपनी जिम्मेदारी से आगाह है, किसी शहरी के हकूक सल्ब होंगे तो कानून हरकत में आएगा। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और जब भी किसी शहरी के हकूक जो हैं वो इस हद तक ब्रीच हों कि वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता हो, तो बिल्कुल ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसका फौरी एक्शन ले और जो कल्प्रिट्स हैं उनके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक मीटिंग में ये बात हाईलाइट हुई कि किस तरह से कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनको इसलिए टारगेट किया गया कि उनके जो सियासी नज़रियात हैं वो किसी एक ग्रुप को पसंद नहीं है और उनके बच्चों के नाम, उनके स्कूलों की तफसीलात और इस तरह की ट्रोलिंग शुरू की गई है। उस पे सर गवर्नमेंट ने अपने जो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। सेनेटर इरफानुल हक सदीकी ने कहा कि अल जहाद मारो मर जाओ वाले नारे लगाने और हाथों में कीलों वाले डंडे और गुलेले लिए वफाक पर हमलावर होने वाली एक सियासी जमात अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ सुनने का हौसला नहीं रखती। किसी भी नौ का जबर हो जो एक आवाज़ को और सच की आवाज़ को और हक की आवाज़ को दबाया जाता है, वो आवाज़ें दबती नहीं हैं। ये लोगों के घरों पे हमले करना, उनको गाली गलौज करना, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके बच्चों को गालियाँ देना, उनको दहशत का निशाना बनाना, दहशत गर्दी करना, उनके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करना झूठा, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी रिवायत हमारे यहाँ जन्म ले चुकी है जिसका कला कमा होना चाहिए। हम सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं पूरी तरह। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने 26 नवंबर के वाक़यात पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। मुल्क खुसूसन वफाकी दारुल हुकूमत में नशे के आदी अफराद के लिए बहाली मराकज़ के क़याम की ज़रूरत से मुताल्लिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तहरीक इल्तवा पर वज़ीर कानून व पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दुनिया भर में जब्त की जाने वाली मनशियात में से 20% पाकिस्तान में जब्त की जाती है। रवां साल मुल्क भर में 133 टन मनशियात जब्त की गई। उन्होंने कहा कि वो मनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मराकज़ कायम करने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाएंगे। सेनेट इजलास में APS पेशावर पर हमले के शोहदा और मरहूम सदीकुल फारूक के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। सेनेट इजलास अब जुमेरात की सहपहर 4:30 बजे होगा। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान मानी PTI को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शीरी मजारी, राशिद हफीज, ताहिर सादिक और चौधरी आसिफ समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब ने फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार किया। इस्तिगाज़ा की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर, तैमूर मसूद, ताहिर सादिक, मोहम्मद तासिफ सत्ती, मखदूम जैन कुरैशी और सेनेटर शिबली फराज समेत 23 मुल्जिमान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। GHQ हमला केस में 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। केस में मजमूई तौर पर मुल्जिमान की तादाद 119 है। मजहब का लिबादा ओढ़े फितनल खारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान के अवाम और तरक्की की
दुश्मन हैं ये मसाजिद, इमाम बारगाहों, अक़लियतों, खेलों, स्कूल्स, कारोबारी और सियाहती मकामात और पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। खवारिज ने कम उम्र कबायली नौजवानों को हथियार के तौर पर हमलों में इस्तेमाल किया। उन्होंने लड़कियों के स्कूलों पर हमले शुरू कर दिए। 2011 में केपी और साबका फाटा में 1600 स्कूलों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे 7,21,000 तलबा, जिनमें 3,71,604 लड़कियां मुतासिर हुई। 2005 से 2018 तक फितनतुल खवारिज ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 227 खुदकुश हमलों में 3009 पाकिस्तानियों को शहीद किया। 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद खवारिज को अफगानिस्तान में जदीद तरीन हथियारों और जंगजुओं तक आसान रसाई हासिल हो गई। खवारिज का मजहब से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, बल्कि ये मकरू अनासिर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के ईमा पर पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन कौमी असम्बली आगा रफीकुल्ला, सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान और रुकन सिंध असम्बली फयाज भट्ट ने बिलावल हाउस कराची में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में अरकान ने अवामी मसाइल के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी से बातचीत की। उन्होंने अपने हलकों में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी। पार्लिमान के अरकान ने सानहा APS के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि इन नन्हे शहीदों ने अपने खून से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की हतमी राह मुतय्यन कर दी। तफसील चौधरी मजहर से। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सानहा APS एक स्कूल पर नहीं बल्कि इंसानियत और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। मासूम बच्चे जो थे, जो हमारे चमन का फूल थे, उन पे जो हमला हुआ है वो हमारे दिलों पे हमला हुआ है। तो इन शोहदा की जो रूहें हैं वो हमारी तरफ देख रही हैं। हम उस वक्त तक उनकी रूहों के कटहरे में खड़े हैं जब तक हम इनका कलाकमा नहीं करते। ये सानिया कौम कभी भी नहीं भूलेगी और इस साने ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक नेशनल एक्शन प्लान बना। हमेशा हमने जनाजे की चारपाई पे पुल देखें और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पुलों के जनाजे देखें। तो जब पुलों के जनाजे होते हैं तो फिर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए अब भी हमारे दिल में एक टीस उठती है। सलाम है इस कौम को कि बड़े से बड़ा ज़ख्म भी अपने सीने पे सह जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देते। कौम अपने मासूम शहीद बच्चों को आज भी नहीं भूली। अरकान पार्लियामेंट का कहना है बच्चों की जिंदगियां छीनने वालों की जिंदगी जहन्नम बना दी जाएगी। उनकी वालदा, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके वालिदैन के साथ हमारी आज भी वो प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी उनके साथ है। बच्चों की जो कुर्बानी है, मैं ये तो बतौर मुसलमान मेरा इस पर कवी अकीदा और ईमान है, ये तो इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगी और ये लोग अपने कैफे किरदार तक पहुँचेंगे। ये कभी ऐसा दुख है जो बुलाया जा ही नहीं सकता। ना सिर्फ हमें इनकी याद आती है बल्कि पूरा पाकिस्तान इनको आज के दिन याद करता है और इसी पे हमें सामने रखते हुए आइंदा का लाएअमल भी तैयार करना चाहिए। साने APS सिर्फ शोहदा को याद करने का दिन नहीं, ये अमन के दुश्मनों को वाज़े पैगाम देने का भी दिन है। कौम उनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जिंदा बच जाने वाले तलबा ने अपने दुख को जिंदगी का रोग बनाने के बजाय उससे अपनी ताकत बनाया। APS पेशावर के ऐसे ही 2 इंतहाई बहादुर और होनहार तालिब इल्मों की कहानी बयान कर रहे हैं अरसलान असद अपनी इस रिपोर्ट में। 10 बरस कबल फूलों के शहर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने मासूम बच्चे, बच्चियों और उनके असातिज़ा पर जुल्म बर्बरियत के ऐसे पहाड़ तोड़े जिसको देख और सुनकर न सिर्फ हर पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में दर्द दिल रखने वाले हर इंसान सख्ते की कैफियत में आ गया। Military officials said many students held hostage had been evacuated. One student described how they lay on the floor, example prolonged gunfire. The Taliban said the attack was in revenge for Pakistan. अफगानिस्तान से आने वाले कालदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक के तालिबान के नाम से जानने वाले तारीकियों के पैरोकारों ने तालीम हासिल करने में मसरूफ मासूम तालिब इल्मों पर हमला करके 136 तलबा और असातिज़ा समेत 144 अफराद को अपनी वहशतनाक बर्बरियत का निशाना बनाया। मैं असफंद खान शहीद का वालिद हूँ जो कि 10वीं जमात का तालिब इल्म था। मेरी बेटी सादिया गुल खटक जो
आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही थी उसी वक्त। मेरा बेटा क्लास 8 में क्लास 8 का स्टूडेंट था। जब उसकी शहादत हुई है तो वो 14 इयर्स का था। APS सानहे में शदीद जख्मी होने के बावजूद मौजूदाना तौर पर बच जाने वालों में वलीद खान और अहमद नवाज भी शामिल थे। 10 साल पहले दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले ये बच्चे अब माशाअल्लाह जवान हो चुके हैं और इलाज के बाद बरतानिया में अपनी आला तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। I had been shot with bullets on my face. It was multiple bullets on my face. My hand, my arm, and my right knee was shot with bullet as well. And I had got like some splinters at the back of my neck. With my face injuries were the most severe injuries that I sustained. I'd lost all my upper teeth, my maxilla, my jaws, and the base of my nose. Was completely broken. वलीद की तरह अहमद नवाज और उनके भाई हारिस नवाज को भी कई गोलियां लगी। हारिस तो हसूल तालीम के मिशन पर कुर्बान हो गए, लेकिन शायद किस्मत उनके भाई अहमद नवाज से कोई बड़ा काम लेना चाहती थी, इसलिए वो जिंदा बच गए। अहमद पहले CMH पेशावर में जेर इलाज रहे और बाद में बरतानिया के अस्पताल में उनके 8 ऑपरेशन हुए। On the morning of 16 December, I was in the first aid training with my schoolmates. A group of men with guns and bombs in their hands entered our school and started firing one after another with no mercy. All I could see was blood and killing, and soon I realized I was hit by a bullet too. I was surrounded by the dead bodies of my friends with whom I was laughing, talking, and joking a few minutes ago. I saw my teacher burnt alive right in front of my eyes. वलीद की तरह अहमद नवाज ने भी इस सानहे और गम को जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत बनाया और बरतानिया में दौरान तालीम लेडी डियाना अवार्ड समेत कई एजाजात अपने नाम करने के बाद आलमी शोहरत याफ्ता तालीमी दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर मुंतखब होकर पाकिस्तान का नाम अक़वाम की बरादरी में रोशन कर दिया। I decided that if the terrorists targeted us in school with the aim of deterring us from going to school so that they could easily brainwash these young people, now I will try my best to make sure that every child in this world goes to school, because that's the way we can eradicate the ideology of terrorism. इन दोनों तालिब इल्मों वलीद खान और अहमद नवाज ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और साबित कदमी से ये साबित कर दिया कि दहशतगर्द अपनी तमाम तर वहशत और बर्बरियत के बावजूद पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले को कभी शिकस्त नहीं दे सकेंगे। असलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गजा में सियोनी फोर्सेज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 52 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 203 ज़ख्मी हो गए हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 45,000 से ज़ायद हो चुकी है। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद स्कूलों को भी निशाना बनाया जिससे बेघर फ़लस्तीनी रिहायशी पजीर थे और इसराइली फ़ौज ने इस जगह को महफूज करार दिया था। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से ये मुतालबा किया है कि वो मसरत आलम बट, शब्बीर अहमद शाह और मोहम्मद यासीन मलिक समेत गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के लिए फौरी इक़दाम करे। KMS के मुताबिक पार्टी के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारत और मकबूजा इलाके की जेलों में नज़रबंद कश्मीरियों को दरपेश तशवीशनाक सूरत हाल को उजागर किया जहाँ वो तमाम तर सहूलियात से महरूम है। ज़िला बडगाम के इलाके बेरवा में लोगों ने बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि हुकाम बिजली घर के लिए मकामी ज़मीन हासिल करने के लिए बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। भारतीय रियासत राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम नर्सिंग प्रोग्राम का कोर्स करने वाले 40 से ज़्यादा कश्मीरी तलबा को मकामी पुलिस और यूनिवर्सिटी हुकाम ने हिरासत किया और कैंपस से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी उनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है और पुरअमन एहतजाज को दबाने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की ज़ेर सदारत जनरल कौंसिल के इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली और मसला कश्मीर के हल के अज़्म का अदा किया। उन्होंने भारत और मकबूजा कश्मीर की जेलों में ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक उल फारूक को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो तवील अरसे से अलील थे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। मरहूम की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी, राजा जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत
सियासी और समाजी शख्सियात, अहले खाना और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदीकुल फारूक ने कौमी सियासत में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। वो साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। सदीकुल फारूक ने अपनी सियासी जद्दोजहद के दौरान कुछ अरसा कैद में भी गुजारा। जनाजे में शरीक सियासी रहनुमाओं का कहना था कि मरहूम को उनकी ईमानदारी, असूल पसंदी और सियासी खिदमात के बायस हमेशा याद रखा जाएगा। एक एतमाद का रिश्ता था और वो इंतहाई काबिल इंसान थे और साथ ही साथ वो बहुत ही मजबूत मौक़िफ़ रखने वाले आदमी थे। उन्होंने सियासत में एक कल्चर, बेहतरीन कल्चर तारुफ कराया। एक तहजीब का नाम है, नजरिया पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट रही है। सिद्दीकुल फारूक एक बेबाक सहाफ़ी थे और सहाफ़ी ही की हैसियत से मैं उन्हें जानता था, लेकिन जब उनकी सियासी एफिलिएशन हुई और एक ताल्लुक़ बना उनका मुस्लिम लीग के साथ, तो उसमें भी माशाल्लाह वो जो है वो साबित कदम रहे। उन्होंने अपनी मेहनत से तरक्की करते करते हुए अपनी पार्टी की खिदमत करके अपने कायद के साथ मुखलस रहकर मरकजी मुकाम हासिल किया। मरहूम सदीकुल फारूक के पसमानदगान में बेवा 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने का इम्कान है। ताहम शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ मकामात पर हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -9, स्कर्दू -7 और गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों का आगाज़ करें और आपको बताएं कायद-ए-आज़म बैन-ए-सूबाई गेम्स में पंजाब को 116 मेडल्स के साथ बर्तरी हासिल है। इस्लामाबाद में जारी गेम्स में पंजाब ने 53 गोल्ड, 40 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। बलूचिस्तान 39 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। बलूचिस्तान के पास 12 सोने, 10 चांदी और 17 कांसी के तमगे हैं। सिंध 11 तिलाई, 13 चांदी और 19 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। खैबर पख्तूनख्वा को 10 गोल्ड, 17 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन हासिल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच कल पाल में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बवोमा ने ट्रॉफी की रनुमाई की। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 83 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं। प्रोटीज ने 52 मैचेस जीते, जबकि ग्रीन शर्ट्स 30 मैचेस जीतने में कामयाब रही। एक मैच बेनतीजा रहा। ब्रिस्बेन क्रिकेट टेस्ट में भारत की टीम मुश्किलात का शिकार है। तीसरे रोज भारत ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बनाए। भारत को ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 394 रन की जरूरत है। जायसवाल 3, शुभमन गिल 1, विराट कोहली 3 और ऋषभ पंत 9 रन के मेहमान ठहरे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 445 रन बनाकर आउट हो गई थी। शुक्रिया अनीस साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।